Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. Today's thought is go down deep enough into anything and you will find mathematics. So I hope you guys doing well and enjoying this session. Students, in the previous video I discussed the logarithmic differentiation and their properties and also questions from 1 to 5. So after studying logarithmic differentiation and their properties, I hope अब ये बन चुकी होगी आपकी favorite exercise. And yes, I also know this exercise take more time to solve the questions, but don't worry students, if your concept is clear regarding logarithmic differentiation, you have solved the questions easily. And one important message to you all students, enjoy करके पढ़ो, बिंदास होकर पढ़ो, without any tension, okay? So I think इतना lecture is enough for today. So today I discussed the question from 6th onward. So let's get start the questions from 5.5 exercise of continuity and differentiability. So the question number 6 is x plus 1 by x to the power x plus x to the power 1 plus 1 by x. You have to find the differentiation of this whole function. Okay? अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्या किया था, बस खाली हमें गिवन था फंक्शन टू द पावर फंक्शन गिवन था और c का डिफरेंशिएशन हमें निकालना था. अब देखो यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी आ चुका है और उसकी पावर भी फंक्शन है, तो हम देखो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसको भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड देन add them and you get the required answer. So let's suppose this function is equals to u and this function is equals to v and this whole function is equals to y and we have to find dy by dx. Okay, now differentiate this equation, we get dy by dx with respect to x. Differentiate this equation with respect to x, we get dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx. So you have to find the differentiation of the u and v with respect to x and add them and you get the required answer, guys. Okay, so let's suppose this u is equals to this function, so u is equals to x plus 1 by x to the power x. अब देखो function to the power function है, that means we have to use the logarithmic function. So taking log both the side we get log u is equals to property क्या थी, देखो log x to the power y है, तो हम क्या करते हैं इस पावर को आगे जंप करा देते हैं तो y log x हो जाता है. ठीक है, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये पावर आगे आ जाएगी x log एंड x प्लस 1 बाई एक्स. ओके, अब देखो ये बन चुका है अब सिंपल फंक्शन. यहाँ पे क्या था कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे क्या था कॉम्प्लिकेट फंक्शन था, फंक्शन टू द पावर फंक्शन था. अब ये हो चुका है सिंपल फंक्शन, प्रोडक्ट में आ चुका है. सो डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाई u एंड u का अगेन करेंगे तो du बाई dx, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x एंड एंगल का दोबारा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाई एक्स. सो कंपेयर करेंगे अगर हम इसको तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u एंड u का विद रिस्पेक्ट टू x इज du बाई dx. अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन बन चुका है और ये सेकंड फंक्शन बन चुका है. ये क्या है एंगल है किसका log का. So using the product rule we have to find the differentiation here. So first function as it is, that means x as it is and the differentiation of this function. So log x का differentiation अगर आपको पता है तो आप इसका भी easily निकाल सकते हो. तो log x plus 1 by x का differentiation क्या होगा 1 upon एंगल नीचे आ जाएगा एंड अगेन एंगल का करेंगे differentiation, that means differentiation of x plus 1 by x. ये क्या differentiation का साइन प्लस second function as it is, second function as it is and the differentiation of फर्स्ट फंक्शन. ओके, सो यहाँ पर क्या बचेगा du बाई डी एक्स. इस u को हम शिफ्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड तो ये u मल्टीपल में आ गया. देखो यहाँ पे क्या बचा x तो मल्टीप्लाई में है, इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x कहाँ शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स. ओके, अब देखो इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है. तो x प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का क्या हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा. देखो 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1. सो पावर आगे आ जाती है, दैट मीन्स माइनस 1 x टू द पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2. तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं. सो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर.
ओके, प्लस दिस फंक्शन एज इट इज़ और एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1। ओके, सो मल्टीपल में क्या है यहाँ पे 1। सो आपने u को क्या लेट किया था, u को हमने लेट किया था u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर x प्लस 1/x टू द पावर x इन प्लेस ऑफ u, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस दिस फंक्शन एज इट इज़। ओके, बस आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये क्या है, मल्टीपल में ये फंक्शन और ये फंक्शन मल्टीपल में है तो कैंसिल आउट हो सकता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x, और ये मल्टीप्लाई में था क्योंकि ये क्या है u की वैल्यू x प्लस 1/x टू द पावर x। सो हम यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं du/dx। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है dv/dx, एंड इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1 क्योंकि हमें ये पुट करनी है किसमें, इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि du/dx हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है dv/dx। ओके, फिर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे एंड यू गेट द आंसर। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। सो अब फाइंड आउट करते हैं क्या dv/dx। तो हमने क्या लिया है v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x। ओके, सो अब आपको फाइंड आउट करना है dv/dx। तो v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x, ये हमने सपोज किया है। अब फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक log बोथ द साइड। सो टेकिंग log बोथ द साइड वी गेट log v इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी 1 प्लस 1/x log x, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये फंक्शन गिवन है और टेकिंग log लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये पावर कहाँ आ जाती है, आगे शिफ्ट हो जाती है, दैट मीन्स जंप कर देती है ये आगे पावर और log x हो जाता है, ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी पावर आगे आ गई, log x हो गया। अब देखो ये सिंपल हो चुका है क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन थी, अब क्या है दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो चुके हैं और हमें प्रोडक्ट रूल पता है। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट log v का डिफ्रेंशिएशन 1/v एंड v का गेन करेंगे तो dv/dx विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स द डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज 1/x, एंगल का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या हो जाएगा 1। ओके, सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो 1/v dv/dx एंड दिस फंक्शन एज इट इज log x 1 प्लस 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 क्या है कांस्टेंट, तो 1 का हो जाएगा 0। 1/x का क्या हो जाएगा, अभी पीछे भी बताया था मैंने, 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, सो आपको dv/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो dv/dx को रहने दो आप लेफ्ट हैंड साइड, शिफ्ट कर दो v को टू द राइट हैंड साइड, तो v मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये सेम फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ v हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने v को लेट किया था, v की वैल्यू क्या थी x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। सो पुट हेयर द वैल्यू ऑफ v x की पावर 1 प्लस 1/x, एंड देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये डिवाइडेड बाई एक्स दिया हुआ है तो 2x मिलके क्या हो जाएगा मल्टीपल में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर log x, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल चुकी है किसकी वैल्यू, dv/dx की। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इस वाले टर्म में भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में इस वाले टर्म में भी आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस log x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है कोई फंक्शन तो क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखो पावर क्या है 1 प्लस 1/x माइनस 2, तो 1/x तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/x माइनस 1, सो x की पावर 1/x माइनस 1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस log x, ये क्या आ गया dv/dx। ओके, अब देखो हमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और कहाँ पे पुट करना है, जो हमने निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। अब देखो हम du/dx भी निकाल चुके हैं एंड dv/dx भी निकाल चुके हैं, तो दोनों को क्या करोगे आप ऐड। सो आफ्टर पुटिंग du/dx प्लस dv/dx इन द इक्वेशन नंबर 1 वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, अब ये क्या है du/dx की वैल्यू प्लस dv/dx की वैल्यू, दैट मीन्स वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर गाइज।
Now move on to the question number 8. Question is sin x to the power x plus sin inverse under root x. You have to find the differentiation of this whole function. अब देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, दैट मीन्स ये तो हमें लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा. और साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पता है तो आप साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो आप क्या ले सकते हो, इस फंक्शन को u एंड इस फंक्शन को v, और सेपरेटली आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लो एंड यू गेट द required answer. So this whole function is equals to y. Let's suppose this whole function is equals to y and this is u and this is v. Differentiate them with respect to x, we get dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx. Okay, now you have to find the differentiation of u and v with respect to x and add them and you get the required answer guys. So u is equals to sin x to the power x. सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं. So u is equals to sin x to the power x. So function to the power function है, that means we have to take log. So taking log on the both side we get log u is equals to, ये पावर जंप कर दी गई आगे, that means x log sin x. ठीक है, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सी चीज़ थी, दैट मीन्स फंक्शन टू दी पावर फंक्शन गिवन था. अब आपने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई. अब देखो दो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो log sin x है और एक x है, और ये प्रोडक्ट में आ चुके हैं, दैट मीन्स हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन. ओके, सो डिफरेंशिएट देम विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ log u इज़ 1/u एंड u का करेंगे du by dx. ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log sin x इज 1/sin x, और साइन का करेंगे क्या हो जाएगा cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड du by dx. सो du by dx को यहीं पे रहने दो, शिफ्ट u टू द राइट हैंड साइड, वी गेट u इन द मल्टीपल एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x cos अपॉन साइन है तो क्या हो जाएगा वो cot प्लस log sin x. ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ u वी राइट इट एज u की वैल्यू विच इज sin x to the power x. So put them sin x to the power x in place of u and this bracket as it is. So you get du by dx. So अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dv by dx, और वो v क्या था, v is equals to sin inverse under root x. So v is equals to sin inverse under root x and you have to find the differentiation of this v with respect to x. तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है डिफरेंशिएशन. और फिर हम एंगल का करते हैं, दैट मीन्स एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगा 1. तो देखो ये भी तो इसी से कंपेयर कर सकते हैं इसको. तो v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे x क्या है, अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर. अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ओनली 1/√1 माइनस एक्स. अब इस एंगल का दोबारा करेंगे, दैट मीन्स हमें एंगल का भी दोबारा करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का दोबारा करा था वो तो क्या आया था 1. अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स. सो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ x to the power 1/2. अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट मीन्स पावर आगे आ जाएगी और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर में से, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 x to the power. अब देखो हाफ में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -½ और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 1/2. ठीक है, अब क्या इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिला, 1/2 अंडर रूट एक्स. इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स. ठीक है, अब आप निकाल चुके हो dv बाई dx भी और du बाई dx भी. सो आपको किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या थी, dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx. तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो ये क्या है, du बाई dx और ये क्या था, dv बाई dx. ऐड देम एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. So the 10th question is x to the power x cos x plus x square plus 1 divided by x square minus 1. You have to find the differentiation of this whole. Okay. So देखो फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो क्या गिवन है, x to the power x cos x है. दैट मीन्स फंक्शन टू द पावर फंक्शन है. जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है तो हम उसको लेट करते हैं कोई फंक्शन, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड एंड
सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड वी गेट द आंसर। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो ये है, इसको तो हम कोई फंक्शन लेट करके और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। दैट मीन्स कौन सी फॉर्म है ये, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो लेट सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू यू एंड दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू वी एंड दिस होल फंक्शन इज इक्वल्स टू वाई। सो यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बिकॉज यू हैव टू डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। That means you have to find the differentiation of u and v with respect to x and add them and you get the dy by dx. Okay, so u is equals to x to the power x cos x. सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। So u is equals to x to the power x cos x. तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज टू टेकिंग log on the both side, we get log u, पावर आगे जंप कर देगी, दैट मीन्स x cos x एंड लॉग एक्स, ठीक है। फंक्शन टू द पावर फंक्शन अगर होता है और बाहर लगा होता है लॉग तो क्या हो जाता है, जी एक्स आगे एंड लॉग एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन, क्योंकि ये पावर थी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन थी, कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। अब मैंने इसको क्या बना लिया, ऐसा फंक्शन जो कि क्या है, दो फंक्शन जो कि प्रोडक्ट में है और हमें प्रोडक्ट रूल पता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन यही तो करता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्या करता है, सिंप्लीफाई फंक्शन बना देता है, ठीक है, सिंपल फंक्शन बना देता है। सो लॉग यू इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी यू बाई डी एक्स और यू का क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, सो अप्लाई प्रोडक्ट रूल, वी गेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन में भी दो फंक्शन गिवन है x और cos x। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स को यहीं पे रहने दो, यू को शिफ्ट कर दो टू द राइट हैंड साइड, तो यू मल्टीपल में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा cos x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज़। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, दैट मीन्स अगेन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड यू गेट u के प्लेस पे आप क्या रखोगे, क्योंकि u को हमने क्या सपोज किया था, u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स। सो u के प्लेस पे क्या गया, एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये वाला cos x एज इट इज़, log x भी एज इट इज़, x यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, cos x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos x एज इट इज़, x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। सो डी यू बाई डी एक्स क्या आ चुका है आपके पास, एक्स टू द पावर एक्स cos x। अब इस log x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस log x cos x, ठीक है। अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं डी यू बाई डी एक्स, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वी बाई डी एक्स और फिर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो v को हमने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अप्लाइंग क्वेश्चन रूल हेयर, सो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, क्या होता है क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज 2x, 1 का क्या हो जाएगा 0 बिकॉज 1 इज़ द कॉन्स्टेंट। ये वाला फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इज अगेन 2x। अब देखो 2x यहाँ पर भी है और 2x यहाँ पर भी है और दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो 2x को कॉमन ले सकते हैं। सो 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस की, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वी गेट माइनस 2a, ठीक है। तो 2x इंटू माइनस 2 विच इज़ माइनस 4x और डिनोमिनेटर एज इट इज़ चलता आ रहा है, ठीक है।
सो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गई dv/dx की वैल्यू। आप du/dx की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हो, तो du/dx प्लस dv/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू गेट dy/dx।